अ, हमारे बीच आज बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियां आई हुई हैं। तो अब मैं वेलकम करूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मोहनीश नारायण सिंह का। इनके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बोलूंगी। Monish Narayan Singh is an Indian politician with the BJP, Bharatiya Janata Party, and which was established with a vision to bring in cultural nationalism in 1980. The BJP is a national party and is the most prominent member of Sangh Parivar family. The history and spirit of BJP can be tracked back to the Bharatiya Jan Sangh. Bharatiya Jan Sangh, which is BJS, predecessor or party of BJP, was founded in 1952, which won three seats in the first Lok Sabha election in India and continued as a political party for 24 years. Subsequently, the BJS merged into the Janata Party in 1977 and formed a coalition government. BJP was formed after the fallout of Janata Party coalition government in 1979. The man behind creating such a large party with one single objective was none other than great visionary, scholar, and leader Dr. Syama Prasad Mukherjee, drawing inspiration from Pandit Deen Dayal Upadhyay. Panditji was an insightful leader and guided the earnest BJS party from 53 to 68, that is 1953 to 1968. Now, talking about its genes from RSS and the earnest while Bharatiya Jansangh, BJP is dedicated to the country's unity, integrity, its inherent uniqueness, social strength, individual character, and cultural exclusiveness that have made the characteristics of India. The country has seen many invasions and operations from external forces. It has fearlessly resisted and fought against all odds, keeping its flag of essential civilization and cultural ethos afloat. History is the evidence of the Indian spirit. To the patriotism of Chandrapati Shivaji, the legacy of Katkeya, the heroism of Maharana Pratap, Lakshmi Bai, and Guru Gobind Singh. The same spirit was carried forward by Swami Dayanand Saraswati and Swami Vivekananda, we all know, in the recent past. Now, keeping alive with this spirit, Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, Aurobindo, Sri Aurobindo, and others have made the history by the simple yet powerful message of patriotism for the motherland. Current Prime Minister from Bharatiya Janata Party is also, everyone knows it is Sri Narendra Modi. There are a lot of campaigns run by Modi Sarkar as well for the Indian people. Monish Narayan is now currently Mohitosh Narayan. Mohitosh Narayan. Sorry about that. I apologize. Mohitosh Narayan is currently a member board of advisory meeting, Ministry of Telecommunication, Government of India, and also currently treasurer for BJP Kashi Prant. He was an ex-secretary for BJP Kashi Prant. Now, I would like to welcome Mohnish Narayan to speak few words for us. Please. Thank you. I'm very उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में सबको बताया। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी जिस फिलॉसफी पर, जिस आइडियोलॉजी पर वर्क करती है, दैट इज अंत्योदय। अंत्योदय मीन्स उस विकास के उस क्रम में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को समानांतर, मतलब पैरेलली जो सबसे आगे है उसके पैरेलल उसके साथ एस्टेब्लिश कर देना। दिस इज द आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी व्हिच वाज लेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज टोल्ड बाय रोमा। मुझे सबसे पहले, चूंकि आज जो विषय है वो 15 अगस्त का है, इंडिपेंडेंस डे का है, तो मैं आपको सबसे पहले इस 74 स्वतंत्रता दिवस के लिए आपको शुभकामना देता हूं। और इसका जश्न मनाने के लिए आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं आपके साथ एरोजिना में मैं जुड़ा हूं। और मैं थोड़ा 2-3 लाइन इस विषय पे कहना चाहता हूं। जो मेरा टैगलाइन है या जो मेरे टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 से भारत के आत्मनिर्भर बनने तक की बीच की जो यात्रा रही है, ये 1-2 पैरा में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं।
जैसा कि बंधुओं हम सब जानते हैं, हम इस बात पे पूरी तरह से अपने आप को इस बात पे जानते हैं कि भारत को 200 साल के कड़े संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। हर भारतीय के लिए आज का दिन बहुत गौरवान्वित करने वाला और गर्व वाला दिन होता है, और विशेष तौर पर उन भारतीयों के लिए जिनकी आत्मा भारत में रस्ती बसती है, और आप जैसे लोग भारत की भौगोलिक परिसीमा के बाहर भी भारत की अलग को जगाने में कामयाब रहते हैं, और यही एक रीजन है भारत आज विश्व गुरु बन चुका है। हालांकि फिर से आता हूं, हालांकि इस आजादी के साथ साथ देश को बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा था, लेकिन अब भारत को आजाद हुए 73 वर्ष बीत चुके हैं, और इन 73 वर्षों में भारत ने विकास के कई अहम पड़ाव पार कर लिए हैं। स्वतंत्रता के लिए विस्तारवादी सोच रखने वालों ने विस्तार के बहुत प्रयास किए। आजादी की ललक ने उनकी मंसूबों को जमींदोज कर दिया। आप इस बात पे यू आर वेल वर्स्ड कि आपने देखा किस तरह से यहाँ पर लोग आए, अपने अपने मंसूबों को, अपने अपनी उन चीजों को जिसके कारण वो यहाँ पर गुलाम बना करके लेकर के गए, और बहुत ज्यादा हमारे मानस पटल पर, या हम ये कह लें कि कुछ समय पहले तक, बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि कुछ समय पहले तक शायद हमारे डीएनए में गुलामी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने उस कड़ा संघर्ष किया, और उस कड़े संघर्ष के साथ जिसपे हमने अपना प्राण भी अर्पण किया, और उसी ललक ने, आजादी की उसी ललक ने उनके मंसूबों को जमींदोज किया। मैं कहना चाहता हूं कि गुलामी का कोई कालखंड ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान के किसी कोने में आजादी के लिए प्रयास नहीं हुआ था, प्राण अर्पण नहीं हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने हर क्षेत्र में विकास के पथ पर अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। बीते कुछ वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में विदेशों पर अपनी निर्भरता को खत्म करने के उद्देश्य से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। अब भारत हर रोज आत्मनिर्भर होने के लिए छोटे छोटे, लेकिन मैं कहूंगा रुमा कि छोटे छोटे ही सही लेकिन मजबूत कदम बढ़ा रहा है। अगली पीढ़ियों के लिए हम कुछ महान करने की विरासत को जारी रखेंगे, क्योंकि ये हमारी बारी है अब की बार इसको, विरासत को आगे ले जाने की, और हम ये करके रहेंगे। इस संकल्प शक्ति के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूं, इस आशय और इस संकल्प के साथ कि जरूर हम जो भारत की हमारे संस्कारों की, भारत के जो हमारे सफर की थाती रही है, उसमें जरूर हम कुछ ना कुछ एड ऑन करेंगे, और भारत आत्मनिर्भर जो है वो हम अगली पीढ़ी तक इसको इस स्वरूप में लेकर के जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोदित भाई, धन्यवाद। काफी अच्छा लगा आपको सुन के, और हम सब एरिजोना में और पूरे जो है अमेरिका में पूरी कोशिश है कि हम अपने संस्कारों को, अपने बच्चों, अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रभावित करें। इसीलिए हम तरह तरह के फंक्शन करते हैं, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी उद्देश्य के लिए बना है। सो थैंक यू। बैक टू यू।